If I let you know the s- overview of this question, Mungeri Lal has two investment plan A and B to choose from. Plan A offer 10% compound annually while B offer interest of 12% per annum. Till now, till how many years it will be plan will be better investment. So this is 10% on compound interest and 12% of simple interest. You have to tell me कि कितने साल तक उसको किस दिस इज प्लान ए एंड दिस इज प्लान बी बेटर का मतलब क्या है विच वन इज गेटिंग मोर प्रॉफिट. ठीक है. हाउ यू विल डू दिस. Okay, let me tell you one thing, na, before starting this class. Yes, good. You got an answer. I think no problem. So your answer is 4. So let me tell you how I will do this question if I am sitting in the examination hall. This is 10% profit, 10% interest. So I will check for 3, 4, 5, 6, 7. Nah, these are the options. So first of all, I will check for a 3. So 1.1 into 1.1 into 1.1. 10% more means this is 1.1. If I multiply, I got 1.331. 1.331 because I know the 11 cube, and this is for 3 year. This is for 3 year. If I see the 3 year, that how much it is, 36%, because 12 into 3, that is 36, because this principal is same. So how much I'm getting interest here, 33.1%. नहीं गए 1.33% ये मेरा अमाउंट हो जाता है ना. Because the CI is having whatever I am getting, the principal 1 plus r raised to power 100 raised to power n is equal to amount. This is the formula for the CI. यहाँ पे 36 मिला, इसका मतलब still better. Let me check for other one also. Another one, suppose 1.331, I know that I have to multiply with the 11 means 1.1. So 11 1 carry 1, 33 34 carry 3, 33 37 carry 3, and this is 11 and 3 14. So still I'm getting this 1.4. So how much I'm getting, 47.41% as a CI interest. And here for 4 year I'm getting 48%. Yeah, still it is good. But the moment I move to this is 5. So 5 it is a 60%, definitely. 12 into 5 60%, and 1.4741. Let me do this. 11 1 carry 1, 44 45 carry 4, 70 77 81 carry 8, 48 44 and 8 52, that carry 5, and this 11 and 5 is my 16. So the moment I write it, I got a 62.1%. So now for a 5 year it is more. A is better. So my line of this 4%, sorry, this 4 year. Have you tried in this way or some other way? If you get the easy one, then you can tell me, otherwise it is okay for me. How you do? आपने कैसे करा ये?
This was much easy. Okay, okay. See, यहाँ तक थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर ये 5 साल, अगर कोई ये पूछ ले सर 5-6 साल होता तो आप कितने बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो आई हैव नो आइडिया कि क्या करना, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वी हैव द कैलकुलेटर, ठीक है। In CAT, I think in your exam I don't know because I never attempted this JET. सो दिस इज 60%, तो मेरा 4% आंसर। लेकिन इससे पहले ना मुझे, गिव मी मिनट सर, इन्वेस्टमेंट लेके करा, यस यू कैन डू दैट ऑल्सो, इट्स या, ठीक है। यू कैन अज्यूम सपोज यू हैव टेकन दिस 10,000, 10% annually, so this is a 1,000, then again 1,000 plus 100, then again 1,000 plus 100 plus 100, and how much it is for 12%? I am getting, this is here 12, this is here 12, this is here 12, this is again 12, and this is more. Yeah, you can do this way also. Yeah, this is also good. No matter what is that, you can do like this also, because CI जब तक आपको ज़्यादा मिलता रहेगा, that is a better plan, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, no problem, ठीक है। Now listen to me, actually मैंने directly question discuss कर लिया, I have to tell you something. Okay, I think you have taken the class of DI session with me, so you better know what is percentage. Listen to me. Percentage I discuss what we compare upon to whom we compare, to whom we compare into 100, ठीक है। And I think I suggested you कि you have to understand 1 to 120 at least fractional value. Suppose 120 is 5%, 1 is 100%, ये वैल्यू आपको याद करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, क्योंकि ये सारा टाइम फिर इसी में चला जाएगा, ठीक है। जैसे 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33.33%, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। And the secondary thing, what you understood here, uh, please understand, 20% means 1 by 5. Is it okay for you? And if I write 20% more or increased, ठीक है, then it means, हम जनरली क्या कहते हैं, कोई अगर वैल्यू 100 है, 20% इंक्रीज मतलब इट विल बिकम अ 120। It means if I am assuming my value is not 100, my value is 5. So how much it is increased? 1. So this will be a 5 plus 1. So value will be a 6 by 5. Please understood. Blindly you can do one thing. Whenever there is a more, you can add these numerator and denominator, write as the numerator and denominator remain same. Suppose 20% less or decrease, because I need this one decreased. It means I have the value 5. Now it is 1 decreased. So this 4 minus 1, sorry, 5 minus 1, that value will be a 4 by 5. I think you know this. The logic behind this idea. Okay, this is what my, can I take this ratio? 5 by 6. See, if the value my 100, then it becomes 20% increase, then it becomes 120. Suppose I am assuming this value is my 5, then it increase by 20%. So what is the 20% of 5 is 1. So this will be a 6. Got it? Okay, if you will say कि why sir you are telling this one, because many times, the please listen the question, many times it is written that A sell his goods to B at a 20% profit, B sells to C at a 10% profit, and C sells to D at a 10% of this one. या कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि सपोज एग्जांपल है, देन द एक्सपेंसेस, मतलब दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल, दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल, ठीक है। एक चेन अगर आपके या सक्सेसिव है, सपोज आई टेल यू देर इज अ 10% डिस्काउंट, and again there is a 23% discount for an example, then 30% discount. Find the equivalent discount. Equivalent discount, so either you have to use the formula, otherwise this way. So I'm using generally this fractional way. I will tell you more clear in this. So I think you have got an idea. Let me tell you one more thing. Suppose I write 40%. So what is the fractional value of 40%? Twice of this 20%. So this will be a 2 by 5.
Can you tell me this 40% more is what? What are the 40% more? Please, quick. 40% more is we will add these two, numerator and denominator, we will write in and keep it here. Less is subtract, this is a 3 by 5. Okay. Yeah, it is 7 by 5 and 3 by 5. Good. So please keep in your mind this idea. Rest of thing जो आपको पता है परसेंट में, that's good. If you want to take a screenshot, you can. Now I am starting with I'm trying to connect this percentage to profit and loss. Please, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने जो गेन करी है परसेंटेज में, वो आप अपना यूज कर सकते हैं। आई हैव नो इशू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। So before starting the percentage, you have to need this CP, SP, what is profit, what is profit percentage, what is loss, what is loss percentage, what is MRP, what is discount, what is discount percentage, what is markup, and what is markup percentage. आप इसमें से बताओ मुझे, आपको क्या क्या पता है? सर प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट इंक्लूडेड, यस, एंड सक्सेसिव डिस्काउंट, यस। आई विल टीच यू एवरीथिंग। See, successive discount is nothing, it is the percentage change. That's why I'm just telling you this one. I will show you how I am connecting this percentage concept towards your profit and loss. Okay. Now let me just tell you this basic idea of these terminology. So what is CP? You know, the price at which the shopkeeper uh, what you are telling, this a plus b minus a plus b by 100, this is an formula na, plus minus b plus minus ab upon 100, not a plus b, actually it is ab. So this is the formula for successive discount, or you can say successive increment for two only, for two times only. Suppose I tell you this is a 20% decrease, 10% decrease, means 20% discount, 10% discount. And if I want to find out the equivalent discount, you can tell me the with the help of this formula. लेकिन अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि 20% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, देन अगेन आई एम गिविंग यू सपोज 25% डिस्काउंट, देन व्हाट यू विल डू? और I have changes successively three times: 10% increase, 25% decrease, and this 10% again increase. So what you will do? You have to apply the formula every time. This is not applicable. Please understood. This is every time not applicable. But the knowledge of knowing this is good. It's good. Why? Because many times what it will say कि there is an increase of 3% successively two times. There is an increase of 3% and suppose 4%. What is the total change? So 3 plus 4 plus 12 by 100. So this will be a 7.12%. This is the you can say application of this formula. Okay, got it? But there is a problem. देर इज अ प्रॉब्लम कि अगर आपको टोटल दिया है और इनमें से कोई एक पूछा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, यू कैन डू, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत लोग क्या करते हैं कि इन दोनों से मैंने एक रिजल्टेंट निकाल लिया, सपोज -20 -10 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 100, सो दिस विल बी माई 28% डिस्काउंट combinedly. I can reuse this and this as a this formula again. So this will be a -28 -25 plus of 28 into 25 divided by 100. So this will be a 4, this will be a 7. So this will be a 21 and this is 46% discount. No issue. You can use it. No problem. But there is a problem where, please understood what is the difference. 3 का मैंने पेयर बना लिया, दो दो का मैंने यूज करा, मैंने कैलकुलेट करा फिर और इसका कर लिया, लेकिन ये प्रॉब्लम कब आ जाएगी? सपोज आई चेंज द फिगर, 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट एंड 33.33% डिस्काउंट, और even in 2, suppose this is even in 2 also, 10% discount, 33.33% discount. So what you will do? -10% minus 33.33 plus.
33.33 into 10 divided by 100, है ना. It looks little complicated. और अगर ये 3 में आ जाएगा तो और दिक्कत होगी. सो द नोइंग दिस फार्मूला, इट्स गुड. इट्स गुड बिकॉज आपको रिजल्टेंट इंटरेस्ट भी कभी कभार मिलेगा. मान लो मैंने अगर आपसे कभी ये कह दिया, आई एम गिविंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने ना, मैं यहाँ पे चल रहा था, कोई नहीं, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माई वर्ड. Sir, when there is a case if CP of X article is equal to the SP, so what is the problem? Yes, just do it. CP of X article is equal to SP of by article. So it is what my SP upon CP is nothing. It will be X upon by. So what is the problem here? What is the profit here? Profit is X minus by upon by into 100. नथिंग टू वरिड. सीपी इक्वल टू एसपी वाले में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट एज इट इज एंड टेक अ रेशियो. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस ऑल आइडिया. ठीक है, लेट मी कंप्लीट इट. आई विल टेल यू दिस ऑल, और आप मुझे पूछते जाएंगे जो आपके दिमाग में आएगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट, मैं आपके सारे जो यू कैन से डाउट्स हैं वो पढ़ लूंगा और एक एक करके आंसर दूंगा. उससे पहले हम एक काम करते हैं. लेट मी कंप्लीट वट एवर इन माई माइंड. There is a CP, SP, please understood here. Profit percentage, loss percentage, and this is MRP, discount, discount percentage, markup, and markup percentage. Do you know every word of profit and loss? These all terminology आपको ये सारा पता है. Okay, चलिए. Now CP is a price at which shopkeeper buy the item, है ना. Yes, little brush up you needed. Okay, no problem. And the SP is a price at which it sell the item, है ना. And where it will be a profit when that SP is greater than of CP. So what is the profit? Profit is SP minus CP. For example, उसने 100 रुपीज का क्या करा, बाय करा और 120 का बेचा. So how much there is a profit? There is a profit of 20 rupees. And what is that profit percentage? Please understood. Profit percentage. So what we are comparing? We are comparing profit. Profit is this. To whom we are comparing? CP into 100. Please do not mug up this formula. I'm just telling you how it is formed. Okay. So this is nothing 20 by 100. So this will be a 20%. Similarly, loss is occur when SP is less than of CP. Suppose I've taken that CP is what my 120 and SP is my 100. So loss is what my CP minus SP. And what is the loss percentage? CP minus SP upon CP into 100. So please understood the this. We are finding profit or loss with respect to CP only. Okay? Yeah, that's easy. No problem. Yes. So what is MRP? MRP is maximum retail price, or generally we will take it as a tagged price, mark price, marked price, जो price mark होता है. ठीक है. Discount. What is discount? So can you tell me what is discount? Can I say MRP minus SP? Why? Because suppose there is a book, आप बाई करने गए, 400 रुपये इस पे MRP था, एंड यू सेड कि सर भैया कोई डिस्काउंट नहीं दोगे. उन्होंने बोला कोई नहीं मैडम, आपको ना 300 रुपये की पड़ेगी. सो दिस 300 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस. एंड हाउ मच इट इज गिवन द डिस्काउंट? डिस्काउंट इज माई 100 रुपीज. ठीक है. सो डिस्काउंट इज वॉट माई MRP माइनस SP. Now, please understood discount percentage. Percentage is what we are comparing. We are comparing discount. To whom we are comparing? So let me know. Yeah, discount upon MRP. Yeah, it's good. So this is on the MRP only. It's good that you have to understood. Okay, while telling this all idea, I want to tell you one thing only. Ki what is with respect profit and loss with respect to CP, and here the discount is with respect to MRP. Most of the students forget this. That's why they mark. And there is a term of markup. Can you tell me what is markup here?
Okay. See, markup is what? Markup is not a customer expect. Customer expect नहीं है, डिस्काउंट कस्टमर को मिलता है इसलिए उसके बारे में वो अवेयर है, आपको पता है कि एमआरपी क्या है. लेकिन मार्कअप इज ओनली द एक्सपेक्ट ऑफ द, यू कैन से, seller. Because suppose the CP of the any commodity for seller is my 200 rupees, and after ये इसके लिए आया दुकान पे और इसने क्या करा, उस पे टैग कर दिया प्राइस 250 रुपीज. दिस इज एमआरपी and this is CP. So whatever the more amount, or you can say whatever the increase with respect to CP, that is markup only. So markup is nothing, that is the MRP minus CP. वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा अमाउंट ऐड करके एमआरपी सेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्कअप. ठीक है. अच्छा, मार्कअप परसेंटेज क्या होगा सर, कैन यू टेल मी. देखिए मैंने 250 रुपए की चीज को मैंने क्या करा, 250 का एमआरपी लगा दिया. तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 2000 का 2500 रुपये लगा दूं, या ऐसा होगा कि मैं, या मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसका मैंने 350 कर दिया, तो इसका क्या मैं यू कैन से 3000 कर सकता हूँ. क्या इसका मैं 20,000 की चीज 30,000 में बेचूंगा? नहीं. जनरली क्या होता है, अगर 10 रुपए का आइटम है, आई कैन सेल इट इन 20 रुपीज, बट आई कैन नॉट सेल द 100 रुपीज, सॉरी 1000 रुपीज आइटम इन 2000 रुपीज. ठीक है. सो मेरा यहाँ पर क्या, नो, no, not with respect to MRP. So this markup is this MRP minus CP with respect to CP, because जो सेलर है, सेलर सीपी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि उसका एमआरपी क्या होगा. मेरा यहाँ कहने का मतलब था कि जो एमआरपी डिसाइड होता है वो कमोडिटी के सीपी के अकॉर्डिंग होता है कि इसका एमआरपी क्या होना चाहिए. आप समझ रहे हो. 1 लाख रुपए का कोई आइटम है, इट कैन नॉट बी सेल्ड इन द 2 लाख रुपीज, हो ही नहीं सकता, लेकिन 10 का बीच में 20 में इजीली सॉल्व होता है. ठीक है. तो मुझे लगता है आपको विद रेस्पेक्ट आइडिया पता चल गया कि हम किसके रेस्पेक्ट में क्या करेंगे. नाउ प्लीज, मार्कअप इज द आइडिया ऑफ इंक्रीज, डिस्काउंट इज द आइडिया ऑफ डिक्रीज, लॉस इज द आइडिया ऑफ डिक्रीज, प्रॉफिट इज द आइडिया ऑफ इंक्रीज. ठीक है. तो अभी इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो मैं अभी अभी आप चाहो तो आपका इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ इसको. प्लीज टेक इट क्विक. नाउ how I will connect it, please understand. If I say 20% more, 20% increased. ठीक है. The fraction value is 6 by 5, you know it because I told you. Suppose I say 20% profit. Profit means what, increase na, so it is again a 6 by 5. But in this case, in the percentage, this is my initial value and this is my final value. But जैसे ही उसने profit word लगाया, so this will become a CP and it will become a SP. So what is this difference? This difference is my profit. SP minus CP. Did you got this? Suppose I said 20% markup. Markup is also a 6 by 5. But in this case, this 5 is my CP and this 6 is my MRP. And this is what my markup only. Suppose I said 20% less and decreased. This is 4 by 5. Suppose I said the 20% loss, 20% loss or depreciation. Understood it, please. So this is again a 4 by 5. बट लॉस में क्या होता है, दिस डिनोमिनेटर इज व्हाट माय सीपी, न्यूमरेटर इज व्हाट माय एसपी. सपोज आई से 20% डिस्काउंट, 20% discount, that also 4 by 5, but this is CP and this is, sorry, this is MRP and this is SP. If you got it then it's good. बताओ जल्दी से, आपको ये कनेक्ट करना पता चल गया. प्लीज अंडरस्टूड दीज फैक्टर्स. और ये आपको ना ज्यादा नहीं, आपको इजीली अंडरस्टूड कर लोगे अगर आप इस वर्ड के अकॉर्डिंग. Okay, I'm just going to remove this much of only leaded you. Now there is a SI. SI formula is what, my P into R into T divided by 100. This is only a one formula, single formula that you have to understood.
and rest of the things just forget. And in here you need to understood every year SI remain same, हर साल SI सेम रहता है, ठीक है. और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा, सो दैट विल बी अ फार्मूला ऑफ दिस वन. दिस इज फॉर n इज अ टाइम फॉर ईयरली कंपाउंडेड, ईयरली कंपाउंडेड. अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है कभी, तो r बिकम्स r/2 एंड t बिकम्स 2t. कभी क्वार्टरली होता है तो r बिकम्स r/4 एंड t बिकम्स 4t. You know this, I think. Half yearly compounded, half yearly compounded, and this is how much? This is quarterly compounded. I think you know it. Okay. Now, what I am doing, please understood this. This formula मैंने rewrite कर दिया. कैसे rewrite कर दिया? A upon A is equal to B is equal to 1 upon R raised to power 100 raised to power n, है ना. मैंने इसको लिख दिया A upon P is equal to 1 plus R 100 raised to power n. मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से यूज करता हूं, ठीक है. इस फॉर्मूले को सी, देखिए कि इसमें ना क्या सिमिलैरिटी है इन परसेंटेज एंड दिस वन ऑल्सो. प्लीज अंडरस्टूड. मैंने क्या करा, मेरे पास एक 1000 रुपीज है. आई इंक्रीज 3 टाइम्स इट 10%. 10% इंक्रीज करा, फिर से 10% इंक्रीज करा, फिर से 10% इंक्रीज करा. एंड आई नो द 10% इंक्रीज, सो 10% वैल्यू इज 1/10. 10% इंक्रीज मीन्स 11/10, है ना. सो कैन आई से, और आप हमेशा ध्यान रखेंगे परसेंटेज में अगर एक ही वैल्यू पर बार बार अगर मैं कोई भी परसेंटेज चेंज कर रहा हूं, यू कैन मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल वैल्यू. सो आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस वन. So the resultant will be, and the final value will be a 1331 because this is cancelled. This is my percentage concept. Now think it. सपोज मैंने अगर यहाँ पे बोल दिया 1 + 10%, क्या है मेरा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड प्रिंसिपल, जस्ट फॉरगेट, प्रिंसिपल इज सपोज दिस इज 1000. सो 1 + 10 upon 100 raised to power, suppose this is 3 year, so this is 3. 1 + 1/10, this is 3. So it is what my 11/10 raised to power 3. It is nothing, this one. This is what my, see, A upon P. 1 upon 10 into 10 into 10. So can I say this value represent a principal? So this has to be a represent a amount. Means denominator represent the principal and the numerator represent the amount. Okay. So CI is nothing. This is a percentage increase. और अगेन से सक्सेसिवली परसेंटेज इंक्रीज, जो आप बात कर रहे हो सक्सेसिवली परसेंटेज इंक्रीज. पहले 10% हुआ, फिर 20% हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. सो बेसिकली कंपेयर लाइक अ परसेंट. यस यस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना. परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, दीज ऑल आर, कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है. एंड दिस सिंपल इंटरेस्ट इज जनरल परसेंटेज चेंज. ओके. तो ये अगर आपको आइडिया क्लियर है, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड. ओके गुड. लेट मी टेल यू द सक्सेसिव चेंजेस. लेट मी, ठीक है. मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, चाहे वो परसेंटेज हो आपका कॉन्सेप्ट, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हो या आप सीआई निकाल रहे हो, आप हमेशा एक बात ध्यान रखोगे. अगर कोई भी एक कमोडिटी है, उस कमोडिटी पे आपने फर्स्ट इफेक्ट, पहला इफेक्ट आपने क्या लगाया कि सर हमने 10% उसको इंक्रीज कर दिया. सेकंड इफेक्ट आपने उसी पर, एक ही कमोडिटी पर, उसने तो आपने उसके बाद क्या किया, 20% मान लो डिक्रीज कर दिया. फिर आपने थर्ड इफेक्ट ये लगाया कि आपने उसको 5% सपोज इंक्रीज कर दिया, या मान लो 50% इंक्रीज कर दिया, ठीक है. तो होगा क्या, एक ही कमोडिटी पे जब अलग अलग इफेक्ट लगेंगे, सो प्लीज अंडरस्टूड, फर्स्ट इफेक्ट इंटू सेकेंड इफेक्ट इंटू थर्ड इफेक्ट एंड सो ऑन is equivalent to net effect. This is equivalent to net effect. ठीक है. So first effect, second effect, third effect, dot dot dot, whatever the effect, so this will be a net effect. Okay.
नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर ये कह दूं कि राम increase the price of his any item, first 10%, then 20% decrease, then 50% increase. Find the resultant percentage change. कितना परसेंट चेंज हुआ? 10% increase means 11/10, 20% decrease means 4/5, 50% increase means 3/2. So this will be a 2. So it will be a 66/50. इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू मेरा 50 है, फाइनल वैल्यू मेरे पास में 66 है. सो हाउ मच इट इज इंक्रीज? इट इंक्रीज 16/50. So there is a 16/50 into 100. So this will be a 32% change. So resultant 32% क्या हो जाएगा? इसका इंक्रीज हो जाएगा. बात समझ में आया आपको? Yeah, I will tell you the false weight concept is also important. I will tell you. Listen to me. That is also, if you have understood the successive na, then false weight is also correct. सर इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेंगे? पता चलेगा. कैसे पता चलेगा? आई टोल्ड यू ना. सपोज 10%, 10% वैल्यू इज 1/10. इंक्रीज मीन्स दोनों को ऐड करके 11/10. डिक्रीज मीन्स 9/10. 20% 1/5. इंक्रीज मीन्स 6/5. डिक्रीज मीन्स माइनस कर देंगे 4/5. सपोज 50%, दैट इज 1/2. इंक्रीज मीन्स दोनों को ऐड कर देंगे 3/2, माइनस कर देंगे व्हाट इज 1/2. है ना? सर लास्ट में जो 32% है, दिस दिस लास्ट में 30%, 32% इज अ रिजल्टेंट वैल्यू, फाइनल वैल्यू. जैसे क्या होता है ना, एक कमोडिटी पे पहले मैंने 10% इंक्रीज कर दिया, फिर 20% डिक्रीज कर दिया, फिर 50% इंक्रीज कर दिया, तो टोटल परसेंटेज कितना चेंज हुआ? सो दैट आंसर इज माई 32%. अच्छा, इसी का इंक्रीज डिक्रीज ठीक है. 32%, दिस इज ओनली बिकॉज 32 इज हैविंग, देखिए लेट मी टेल यू, इनके हमें डायरेक्ट याद है कुछ के, जिनके हमें डायरेक्ट याद नहीं है, तो आपको जो समझ में आए वो लिख सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल 32% आई कैन राइट एज अ 32/100. Suddenly I can write as a increase is 132/100 and decrease is how much? 68/100. 68/100. दिस इज डिक्रीज एंड दिस इज इंक्रीज. और अगर मैं इसको 4 से कैंसिल करूंगा 8 टाइम्स, 4 से कैंसिल करूंगा 25 टाइम्स, तो मुझे रेशियो इसका मिल गया 8/25. आई कैन ऑल्सो री राइट एज अ 33/25 एंड दिस इज अ 17/25. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. मतलब अगर ये फ्रैक्शन यूज कर रहा हूं तो ये इंक्रीज डिक्रीज हो गया, और अगर ये फ्रैक्शन यूज कर रहा हूं तो ये इंक्रीज डिक्रीज हो गया. लेकिन क्या है कि ये हमें ऑलरेडी पता है 1/5, कुछ तो हमें याद होते हैं ना, इसलिए. अगर आप इसका ये लिख रहे हो ना बाई चांस 10% इंक्रीज, दैट इज 110/100 इंटू 20% डिक्रीज 80/100 इंटू 50% इंक्रीज 150/100, देन ऑल्सो यू विल गेट अ करेक्ट आंसर. 1 2 3, 1 2 3, and this 5 से 3 times, 5 से 20 times, 4 से 2 times, 4 से this will be of my 5 times. So this will be again a 66/50. So there is an increase of 16/50 into 100. So again you will get a 32%. ठीक है? This is the concept of successive. Whether it is a discount or a successive percentage change, whether it is a increment, कुछ भी. जैसे for example, मैं इस सबको रब कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक बार क्लिक कर लो प्लीज. लेट मी टेल यू दिस वन. सपोज मैंने बोला फाइंड द resultant discount if somebody has given successive discount, 10% discount, 33 right 1/3% discount, and suppose 20% discount. Find the resultant discount. How you will write it? Find the resultant discount. Please, discount means what? Discount means less. Use it.
ओके, देखिए ये कॉन्सेप्ट यूज करने में आपको तब तब दिक्कत होगी जब तक आपको ये नहीं पता 1 = 100%, 1/2 = 50%, 1/3 = 33.33%, 1/4 = 25%, 1/5 = 20%, 1/6 = 16.66%, 1/7 = 14, right, 2.8%, 1/8 = 12.5%, 1/9 = 11.11%, and 1/10 = 10%. See, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, and 1/19, and 1/20. 1/20 is 5%. Just forget it. This is the half of this one. Please understood. So this below 5.55%. Just forget this. 1/16 is half of this. So this value is 6.25%. This value is one third of this value, one third of 20. One third of 20 is 6.66%. This is the half of 1/17. So this will be a 7.14%. Forget it. This is half of this one. So this will be a 8.33%. And I need to remember this. इतनी वैल्यू आपको कम से कम याद होनी चाहिए. नहीं, 1/5, 1/3, 1/10, no. See, 1/3, 30.33% का वैल्यू 1/3 है. अगर मैंने बोला 33.33% डिक्रीज्ड, इसका मतलब है माइनस करके 2/3 लिखने वाला है. मैंने बोला 20% इज इक्वल टू 1/5, नो डाउट. 20% डिक्रीज मीन्स 4/5. मैंने बोला 10% इज 1/10, नो डाउट, बट 10% डिक्रीज मीन्स 9/10. So I have to use this one, this, and this. So can I use it? 9/10 into 2/3 into 4/5. So this will be a 3 times, and this will be a 5 times. So this resultant is 12/25. इसका मतलब क्या है कि जो 25 रुपए का आइटम है ना, हमने कितने में बेच दिया, या 25 रुपए का जो एमआरपी है वो हमने कितने में बेच दिया, 12 रुपए का बेच दिया. सो हाउ मच आई हैव गिवन द डिस्काउंट? 13. So this 13 divided by 25 into 100. So this will be my 54%, sorry 52% is my discount, क्योंकि हम ये डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, माइनस आ रहा है. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay, Ramsa, see, I'm not against using this formula. I'm not against using this formula, but please listen to me. एग्जामिनर का भरोसा नहीं. मान लो अगर वो ये टर्म दे दिया तो देखो कैसे करेंगे. ये डिस्काउंट का इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं. आप कोई भी पहले निकाल लो, कोई भी बाद में निकालो, मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है. ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 10 और -10 -20 +2. सो दिस विल बी अ 28% डिस्काउंट रिजल्टेंट, इसका और इसका. अब मैं 20 -28 -33.33 प्लस 28 into 33.33 divided by 100. We are going to do with these now only. How you will solve it? How I can understand that this much is my answer? I think it's little complicated for me to multiply and take in, you can say point value. हाँ, calculator से कर सकते हैं, no doubt. So you can please. That's why I'm not using this formula. I'm using this way. ठीक है रमसा? I think you have got the successive idea. Successive. Mostly क्वेश्चन यहीं से आ जाता है. कैल्सी इज नॉट अलाउड. यस, आपके एग्जाम में कैल्सी नॉट अलाउड है, मेरे एग्जाम में होता है जनरली. Now, I think you have got an idea what actually I'm trying to say. I'm trying to say CI is nothing. This is a successive change. Successive change. और CI में हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 साल के लिए, 4 साल के, कुछ भी करेगा. न्यूमरेटर विल बी माय प्रिंसिपल एंड डिनोमिनेटर, सॉरी, न्यूमरेटर विल बी माय अमाउंट एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज अ दिस. ठीक है, चलिए अब हम अभी फॉल्सी बेट की एक बार बात कर लेते हैं. दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट आइडिया दैट यू हैव टू मेक इट. यस, ओके.
Now I'm just removing. Please take a screenshot. Now the dishonest shopkeeper. Dishonest shopkeeper. Now, dishonest shopkeeper generally cheat two times, at the time of selling and at the time of purchasing. So I'm taking at the time of purchasing the item. At the time of selling वाला item. ठीक है? At the time of purchase. Suppose I assume that 20% cheat by using the faulty weight. 20% cheat. It means what? We are taking the reference of 1000 gram. इसका मतलब है कि वो हमें जो पैसा देगा, कितने के देगा? 1000 ग्राम का देगा। वो कहता है ना, जैसे कबाड़े वाला आता है, वो हमसे डेफिनेटली वो हमसे ना ज्यादा तौल के लेके जाता है। तो उसने पैसा, देखिए, ऑलवेज डिनोमिनेटर जो होता है वो शॉपकीपर बेस्ड होता है। शॉपकीपर जो खर्चा कर रहा है वो, ध्यान से सुनना। 1000 ग्राम का वो हमें पैसा देगा, लेकिन उसने क्या करा? 20% चीट करा। तो आप मुझे बताओ, 1000 ग्राम का 20% 200 ग्राम हुआ या नहीं हुआ? बोथ आर सेम थिंग। 20% चीट और 200 ग्राम चीट का मतलब सेम है। तो इसका मतलब है 1000 ग्राम का उसने हमें पैसा दिया, एंड ही हैज टेकन फ्रॉम आर इज 1200 ग्राम। उसने हमसे कितना ग्राम ले लिया? 1200 ग्राम ले लिया। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका रेशियो लूंगा, सो दिस रेशियो विल बी 6/5। And I know 6/5 is nothing. There is a profit of 1/5. So 1/5 into 100, it gives me 20% profit. Now please understood here. At the time of purchase, 20% cheat will be equivalent to 20% profit. मान लो at the time of purchase मैंने अगर बोला a person getting 30% profit. So that is 30% cheat. इसका मतलब उसने कितना चीट करा? 30% चीट करा। इसका मतलब है 1000 का अगर उसको बाट यूज करना चाहिए था, वेट यूज करना चाहिए था, इसकी जगह उसने हमसे कितना ले लिया? 1300 ग्राम ले लिया। वाई? बिकॉज 30% ऑफ दिस इज वॉट माई 300%, उस सॉरी 300 ग्राम उसने चीट कर लिया। सर 20% प्रॉफिट का इंक्रीज का डायरेक्ट, 20% प्रॉफिट का इंक्रीज का डायरेक्ट मीन्स, यस यस यस, बोल देंगे ना 6/5 को। यस, सो दिस इज डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता चल गया अभी, तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़्यादा आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, इट्स परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, जनरली मैं कम से कम ये तीनों टॉपिक मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको 8 आवर्स में पढ़ाता हूँ। ठीक है, लेकिन अब 8 आवर्स की चीज़ अगर 2 घंटे में करानी है तो आप समझ रहे हो ना, थोड़ा फास्ट ही मूव करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में हूँ। ओके, नाउ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसका मतलब है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उतना परसेंट चीट हो रहा है, नो प्रॉब्लम। सपोज मैंने अगर बोला आपको कि 20% चीट करा, सॉरी 25% चीट करा, अब मैं आपसे पूछूं कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ एट द टाइम ऑफ परचेज, तो आप बोलोगे सर 25% प्रॉफिट हुआ। एंड वी नो 25% प्रॉफिट का फ्रैक्शन क्या होता है? 5/4। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। और 25% प्रॉफिट होने का आप ये मान लो कि इसने 250 ग्राम चीट कर दिया, तो 1000 का वेट करना चाहिए था उसे, लेकिन उसने कितना ग्राम हमसे ले लिया? 1250 ग्राम ले लिया। क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है परचेज में। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन देर इज अ प्रॉब्लम विद द हेल्प विद द टाइम ऑफ सेलिंग, प्लीज अंडरस्टूड। यस यस, हाँ, हमेशा आपका 1000 से ही करते हैं हम यहाँ पर वेट का। अच्छा, यहाँ पर आप चाहे प्रॉफिट का फ्रैक्शन लिख लो या वेट के फॉर्म में लिख लो, बात एक ही है। आप चाहे वेट के फॉर्म में लिखो या प्रॉफिट वाला 20% चीट, आप चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक है। लेकिन प्लीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने यहाँ बोला 20% चीट, और इसका मतलब कितना हो गया? 200 ग्राम चीट, एक ही बात है।
इसका मतलब है अगर उसने 200 ग्राम चीट करा ब्रो, वो हमें बेच रहा है, तो आप ध्यान से सुनेंगे, वो 800 ग्राम सेल कर रहा है, और हमसे जो पैसा ले रहा है वो कितने का ले रहा है, 1000 ग्राम का ले रहा है। प्लीज लिसन टू मी, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ। जैसे कि होता है ना, हम जब शॉप पे जाते हैं तो अपने वो जो सामान रखा होता है उसमें से वो भर के हमें वेट करता है। मान लो आप 1 kg लेना चाहते हो, अज्यूम ओनली 1 kg। उसने क्या करा, उसके पास एक छोटा सा वो हैंड में पकड़ने वाला होता है, तो वो 200 ग्राम चीट करने का मतलब क्या है कि वो आपको कम तौलेगा अब, है ना। तो उसने क्या करा, आपको 800 ग्राम दिया सिर्फ, तो उसने पैसा कितने का लगाया, 800 ग्राम का, लेकिन आपसे कितने का ले लिया, 1000 ग्राम का। तो अगर आप इसका रेशियो लेंगे, द रेशियो विल बी माई 4/5, सॉरी 5/4। अगर ये 5/4 वैल्यू है, इट विल डायरेक्ट 25% प्रॉफिट, अदरवाइज देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1/4 into 100, so this will be a 25% profit. सो प्लीज अंडरस्टूड, अगर वो सेल करते वक्त आपको 20% चीट कर रहा है, तो 20% चीट लीड्स द 25% प्रॉफिट। आप समझ रहे हो। इस केस में आप ये यूज नहीं करोगे, प्लीज डू नॉट यूज द फ्रैक्शन डायरेक्टली, प्लीज ऑलवेज यूज दिस वन, ऑलवेज यूज दिस, ऑलवेज यूज दिस। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि उसने बेचते वक्त 300 ग्राम चीट करा, तो हमने उसने हमें कितना दिया, 700 ग्राम, और कितने पर हमसे पैसा लिया, 1000 ग्राम का। सो फ्रैक्शन इज माई 10/7। प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 3 रुपए का प्रॉफिट कर लिया उसने 7 पे इंटू 100, या 1/7 की वैल्यू मुझे पता है 14.8, तो प्रॉफिट इज माई 14.28, सो ऑलमोस्ट दिस इज अ 43.33% टाइप। एक बार और बता दें दोनों को। ठीक है, एक बार ना बताने की बजाय मैं एक काम कर रहा हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग। ओके, गिव मी अ मिनट। एक और क्वेश्चन आप ट्राई करो, यू विल गेट एन आइडिया। सपोज मैंने बोला इट इज एट द टाइम ऑफ सेलिंग, प्लीज अंडरस्टूड, ये ध्यान रखना, सेलिंग और परचेजिंग है। मैंने बोला कि इट इज चीटिंग 25%। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉफिट। तो आप यहाँ नहीं कहोगे कि सर 25% प्रॉफिट होगा, नहीं। 25% चीट कर रहा है, इसका मतलब है 250 ग्राम चीट कर रहा है। सो डेफिनेटली उसने 750 ग्राम वेट करा होगा और 1000 ग्राम का पैसा लिया। ये कैंसिल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4/3। 4/3 किसका वैल्यू होता है, 33, राइट, 1/3% प्रॉफिट का। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, एक हमारा प्रॉफिट हो रहा है, 3 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। सो 1/3, आई नो 1/3 इज 33.33% प्रॉफिट। आई थिंक नाउ यू हैव गॉट एन आइडिया। यस, गुड, गुड। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कह दूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे अब क्या कह दिया, अ शॉपकीपर cheat 10% at the time of purchasing and cheat 10% at the time of selling. Find the resultant, find the resultant profit. इसका मतलब है एक ही आइटम पे तो कर रहा है ना, 10% चीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, परचेजिंग के टाइमिंग पे उसे 10% का प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं, 11/10 इंटू। लेकिन सेलिंग पे 10% का प्रॉफिट नहीं होगा, कितना होगा भाई, 10% चीट कर रहा है तो ये 900 ग्राम देगा और हमें से पैसा कितने का ले लेगा, 1000 ग्राम का। आप इसका फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप इसका फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, तो मैंने ये कर दिया, इससे कैंसिल कर दिया। इसका मतलब है जो चीज़ 9 रुपए की है वो अब 11 रुपए में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट हो गया, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 2/9, 1/9 आई नो 11.11, सो 2/9 इज 22.22%। क्लियर है, कोई दिक्कत। ओके, अगर ये सारी बातें अगर आपको क्लियर है तो काम करते हैं, एनीथिंग यू वांट टू बी डिस्कस विद मी, आपके माइंड में कुछ चल रहा हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, अदरवाइज आई एम जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस।
सो अगर दो आइटम सेम प्राइस पे सेल करें, ठीक है, हाँ ये वाले क्वेश्चंस देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप दो आइटम सेम प्राइस पे सेल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन दोनों का फ्रैक्शन अलग अलग लिख लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको रब कर दूं, आप बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, सपोज कभी कभार होता है सेम प्राइस पे मैंने सेम सीपी है, और कभी कभी होता है सेम एसपी है, आपने ऐसा ही देखा होगा ना, सेम सीपी और सेम एसपी टाइप। तो देखिए दो आइटम है, मतलब पहला आइटम है दूसरा आइटम है, ये भी पहला आइटम है दूसरा आइटम है। तो होता क्या है, जब भी कभी मैं, ये सेम सीपी और ये सेम एसपी है, ठीक है, तो यहाँ पर जब दो आइटम है ना तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला पहले को मैंने बेचा 20% प्रॉफिट पे, और दूसरे को बेचा सपोज मैंने 10% लॉस पे, फॉर एन एग्जाम्पल, और दोनों का सीपी सेम है, दोनों का सीपी सेम है। तो 20% प्रॉफिट आई नो 6/5, 10% लॉस आई नो 10/9/10। कंडीशन क्या है, दोनों का सीपी सेम है, तो सीपी नीचे वाला फैक्टर होता है ना, हमें इन दोनों को सेम बनाना है। क्या बनाना है, सेम बनाना है। सो अगर ये 10 है तो इसको भी 10 बना लो, तो ये हो जाएगा 12/10, ये हो जाएगा 9/10। इन दोनों का सीपी मिला के कितना हो गया, 20 रुपीज। दोनों का एसपी मिला के कितना हो गया, 21 रुपीज। हाउ मच इट इज द प्रॉफिट, 1। सो 1/20, सो रिजल्टेंट इज माई 5% प्रॉफिट। गॉट इट? एनी इशू हियर? Okay, now please understood, whenever there is a cp same you cannot multiply। आप हमेशा याद रखो कि आप दो अमाउंट पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो जब कमोडिटी है तब। लेकिन ये एक ऐसा केस है सेम सीपी वाला, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, मैंने बोला सपोज 20% एक को प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, और एक को 10% लॉस पे बेच रहा हूँ, ठीक है, और दोनों का एसपी सेम है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, जो कुछ भी होने वाला है वो, ठीक है। नाउ 20% प्रॉफिट 6/5, 10% लॉस 9/10। अभी क्या है, एसपी सेम करना है। एसपी कितना करना है, हमें सेम करना है, हमें मतलब ही नहीं है सीपी कितना जाएगा, हमें सिर्फ एसपी सेम करना है। एसपी सेम करो, ये 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, सो दिस 18/20 एंड दिस इज 18/15। तो रिजल्टेंट सीपी कितना हो गया दोनों का, 35 रुपीज। रिजल्टेंट एसपी कितना हो गया मेरा, 36 रुपीज। सो देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1, बिकॉज एसपी मेरा सेम है ना, दोनों का एसपी मेरा सेम है, तो देर प्रॉफिट ऑफ 1। सो 1/35, 1/35, या हाउ इट इज 1%, दिस 36 ना। Okay, let me tell you, 6/5, that is 9/10. So this will be a 3, this will be a 5. So this is 18/25. So there is a, see, there is 20, sorry, this is 27. So there is an increase of 2/25. It gives me 8% profit. ना अच्छा ये देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, आई थिंक आई डिड नॉट टेक अ राइट वैल्यूज हियर, ठीक है, मैंने यहाँ पर राइट वैल्यूज नहीं है, रेंडमली मैंने लिया है। व्हाट यू विल डू द सेम प्रोसेस, ठीक है। आपके पास कोई क्वेश्चन है, कैन यू स्पीक द क्वेश्चन ऑन द सेम प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, लेट मी थिंक। ओके, जनरली क्वेश्चन पता है क्या होता है, जनरली द क्वेश्चन इज वन आइटम इज सेल एट अ 20% प्रॉफिट एंड अनदर इज सेल एट द 20% लॉस, ठीक है। Find the, and if the SP is my same, find the resultant profit and loss, resultant profit and loss। तो आपने क्या एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है x² by 100, देयर इज ऑलवेज लॉस।
जब सेम एक मेरा सेम प्राइस पे आगे मतलब इंक्रीज करके बेचा था और एक सेम पेयर होता, तो 20% प्रॉफिट दिस इज, 20% लॉस इज 4/5. I can multiply, so this will be how much? This total will be a 24/25. So there is a loss of 1. So 1/25, sorry, 1/25 into 100. So answer is my 4% loss. अगर मैं यहाँ से करता हूँ, लॉस का फॉर्मूला शायद हो सकता है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो, 20 square upon 100. So this will be a 400 divided by 100, which give also a 4% loss. सो सेम सेलिंग प्राइस पे जनरली इस टाइप का क्वेश्चन होता है, सेम एसपी प्राइस पे ये हमेशा 20% प्रॉफिट 20% लॉस, 20% प्रॉफिट 20% लॉस. इफ आई सेल देयर इज अ एसपी इज माय सेम, देन दिस कॉन्सेप्ट जनरली इज आस्क्ड. आप मल्टीप्लाई कर सकते हो प्लीज, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट सर एक फॉर्मूला था 2 SP स्क्वायर, व्हाट इज दिस, मैं याद नहीं कैसे था. नहीं ये वो होगा, दिस इज एन फार्मूला ऑफ सपोज P% इंक्रीज एंड P% डिक्रीज. P% इंक्रीज इज 100 प्लस P ओवर 100 into P% decrease is 100 minus P over 100. So this will be a 100 square minus P square upon this one. और आपसे पूछा जाता है अगर बताओ फाइनल वैल्यू क्या होगी, अगर मेरी इनिशियल वैल्यू x है, इफ इनिशियल वैल्यू इज माई x, फाइंड द फाइनल वैल्यू, ऐसा कुछ होगा फॉर्मूला. आई डोंट नो व्हाट इज दिस फार्मूला. ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग मच. मुझे नहीं लगता कि आपको किसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी. एब्सोल्यूट वैल्यू, इन विच केस, नहीं आप दोबारा देख लेना, लेकिन मैं कोई फार्मूला यूज नहीं करता हूँ ऑनेस्टली. आई डिड नॉट यूज एनी सिंगल फार्मूला वाइल यूजिंग दिस वन. और आप अगर देखोगे मैंने आज सारे जेट के क्वेश्चन पहले रखे हैं. ठीक है, चलिए आओ हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट. और बीच बीच में आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो. तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ. नाउ दिस क्वेश्चन प्लीज, दिस इज ऑल जेट क्वेश्चन. ठीक है, किसी किसी पे ईयर लिखा है, किसी किसी पे नहीं लिखा है, बट दे ऑल आर द जेट प्रीवियस क्वेश्चन. टेल मी what are that answer, how you will solve it. Spend your 1 minute. Done. Hello, मम्मी कहाँ है? Yes, you got the answer C. Let me tell you, might be the answer would be correct, maybe. Let me think. uh, okay, a man borrow 6,000 rupees at an interest of 5% interest, and reducing the balance at the start of the year, it repay the 1,200 rupees at the end of each year. Find the amount of loan outstanding in the rupee at the beginning of the third year. इसका मतलब है सिर्फ 2 ईयर के लिए पूछ रहा है.
ठीक है। सो दिस इज नॉट द क्वेश्चन कि आपको वो विड्रॉ कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है। सो यू कैन नॉट डू कि सर 6000 इंटू 5% मेरा है तो 21/20 इंटू 21/20, नो, यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज दिस इज अ रैंडम क्वेश्चन। रैंडम मीन्स उसने सेगमेंट क्या दिया कि सर 6000 है, इसका 5% इंटरेस्ट कितना हो गया, 300 रुपीज, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया ये, इसमें से 1200 रुपये उसने फर्स्ट ईयर के लिए निकाल दिया, this one. Now I have to apply that 5% interest on this one. So 5% is how much? 10% होता है 510. So this will be 255. So I have to this 12,000. So this 5100, this 225, the total becomes this value. इसमें से 1200 रुपये निकाल देंगे तो 4155. Yes, answer C is my answer. Correct. I think you did in the same way. ऐसे ही करा है आपने. Good, no problem. Now do this. Spend your 1 minute. This is only 1 minute, less than a 1 minute type question. हाँ यही ले ले, ये ले ले. Okay, your answer is E. Let me check. Mr. Mehta is planning for higher education expenses of two sons, age of 15 and 12. He planned to divide the 15 lakh in a two equal part. There is a equal part, है ना? Invest in a two different plans such that the son may access the 21 lakh rupees each. They are the 21 year. तो 15 साल वाला है और 12 साल वाला है, जब वो 21 साल के होंगे तो इसका 6 ईयर का मिलेगा और इसको 9 ईयर का मिलेगा. एंड ही लुकिंग फॉर द प्लान विच गिव द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम. द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लान ऑफ द इंगर ऑफ द शुड बी. नाउ, नाउ प्लीज इनका अमाउंट सेम है, ध्यान से देखो. एस आई विल बी पी इंटू आर इंटू टी होता है, इसका मतलब इसका अमाउंट सेम है दोनों का. तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास ये मेरा सेम है और ये पे ये कह रहे हैं कि दोनों लोगों को सेम उसने दिया और सेम रुपए मिले. कितना मिले? एक 21 लाख. इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट सेम मिला होगा. तो ये 6 ईयर के लिए है, ये 9 ईयर के लिए है. तो आप ये देख लो कि 6 ईयर के लिए कितना परसेंट बन रहा है. अगर जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, दिस इज व्हाट माय यंगर, यंगर के लिए 5% है, यंगर वाला है ये, और सॉरी एल्डर है ये. तो इनका परसेंटेज वैल्यू मैं अगर इस क्वेश्चन को करूंगा तो मैं करूंगा ये मेरा 9 इंटू 5 45% हो गया, और 7 इंटू 6 इंटू 3, सो दिस इज ऑल्सो दैट 45%. 6K के लिए 30. नहीं, आई एम जस्ट डूइंग ना, मेरा, मैं आपको ऑप्शन से बता रहा हूँ. तो अगर मैं ऑप्शन से करूंगा तो मेरे पास में एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा जो आई थिंक, मैं अगर जो आपने बताया है 6 से अगर मैंने करा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, 36 18 180, और दिस इज 180. ई ऑप्शन ओनली. हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. देखो आपने, आप मुझे पता आपने करा होगा 7,50,000. दिस इज व्हाट माय प्रिंसिपल. 7,50,000 इज माय प्रिंसिपल. एंड द टाइम विल बी हाउ मच. दिस इज पी पी दोनों का सेम है, SI1 इज इक्वल टू SI2. यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. सो दिस इज P विल बी सेम R इंटू टी. टी का मेरा टाइम कितना आ रहा है, सपोज ये मेरे पास छोटा वाला है तो छोटा वाले का टाइम ये है, और दिस इज R2 इंटू 6/100. मैंने ये करा है, मेरा रेशियो आना चाहिए था 3:2 का. सो आई एम गेटिंग दैट R1 and R2 रेशियो ऑफ 3:2. सो ओनली वन ऑप्शन आई हैव विद द रेशियो ऑफ 3:2. मैंने ये करा है, आप ये समझ लो, मैं बस इसको चेक कर रहा था.
गॉट इट ना दिस क्वेश्चन? यस, दिस इज एन आंसर बिकॉज अगर मैं इसको सही ढंग से कर दूं एक बार, SI1 इज इक्वल टू SI2, प्रिंसिपल सेम है, R1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू P इंटू R2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई 100, सो दिस इज कैंसिल, दिस इज कैंसिल। R1, अगर मेरा R1 मैंने निकाला, T1 मान लो एक 6 ईयर है और R2 मेरा 9 ईयर है, तो यहाँ से 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, सो दिस R1 अपॉन R2 विल बी वॉट माई 3/2। सो जिसका एज कम है वो मेरा क्या हो जाएगा, यंगर एल्डर है, एल्डर वाले का 3 और इसका मेरा 2। सो 3:2 का देखो किसी में रेशियो नहीं है, तो केवल एक ही रेशियो है, दैट विल बी अ 20 and 30। दिस इज द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डू दिस अगेन, टेक अ 1 minute और ट्राई दिस क्वेश्चन। एम एक्स प्लेयर डाउनलोड कर, एक सेकेंड। इसमें चला ले, डन। बी ऑप्शन, ओके। चेक करते हैं। रमसा वॉट टोटल ऑफ 6 फ्रूट, उनके टोटल 6 है, एप्पल एंड ऑरेंज, ही फाउंड दैट द ही रिक्वायर 1 orange less to extract the same quantity the juice of as extracted from और एप्पल। इसका मतलब अगर एप्पल के मैं अगर 2 एप्पल यूज करता हूँ, तो 2 एप्पल का जो जूस जितना निकलता है वो मेरा क्या होगा, 1 ऑरेंज के बराबर होता है, ठीक है। इफ द रमेश हैज टू यूज द सेम नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज टू मेक द ब्लेंड, if Ramesh had used the same number of apple and orange to make the blend, then which of the following property correct represent the percentage of the juice in the blend? ओके, इसका मतलब है कि अगर टोटल मेरे पास 6 है, ठीक है, तो जूस का जो क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए, तो ये 2 ऑरेंज हो जाएंगे और इक्विवेलेंट में 4 एप्पल हो जाएंगे, होगा या नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ व्हाट इज इट सेइंग? इट्स सेइंग दैट द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस, इसका मतलब है टोटल मेरे पास 6 है, टोटल मेरे पास 6 है, तो इसका मतलब है 6 यूनिट में से 2 यूनिट ही तो बना मेरा ऑरेंज का, बराबर, सो दिस वैल्यू इज 1/3, सो दिस वैल्यू इज 33.33%। या इट्स करेक्ट, आई थिंक यू ऑल्सो। ओके, सॉरी। ओके, लेट ट्राई दिस क्वेश्चन।
Are you getting how you will do this question, or shall I did for this? Okay, let's try this question. A salesman sell two kind of trouser, cotton and woolen. A pair of cotton trousers sold as 30% profit, and a pair of woolen is sold at a 50% profit. So 30% profit and 50% profit. The salesman has calculated that if he sell 100% more woolen than trouser. So can I say this is cotton and woolen? This is sold as a 30% profit, and this is 50% profit. And woolen is 100% more. 100% more means if it is one, then this is two. है and the overall profit is my 45%. However, he end up selling 50% more cotton, the trouser, than the woolen trouser, than the overall profit. Now, I cannot assume any value here, please. मुझे ना अलग अलग दो commodities हैं. अगर एक commodity होता तो I can do something in multiplication. So this value is my x and this value is my y, suppose. तो इसने कितने रुपए में बेचा? 1.3 of x में बेचा. Yes, and this was how much it is sold. It is sold with 1.5 of buy, and इसका अमाउंट मेरा कितना है? 1 है और इसका मेरा 2 है. मतलब मेरा कहने का मतलब उसने टोटल बेचा x plus 2 by. Yes, c plus 2w, same. If it assuming this is c and this is w, and this is c plus 2w, and it is my selling price. 1.3x plus 3 by, it is selling price. It is how much? 1.4% of my x plus 2y. Why? Because this is a cost price, and this is profit. कितना हो रहा है मेरा? 45% profit हो रहा है. So I need to find out x and y value. So this will be a 1.3 of x plus 3y is equal to 1.4y of x plus this is how much? 2.9 of y, because 2 का double this 2, this is 0.9. तो अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा, पॉइंट बाई इज इक्वल टू 0.1.5x. सो बाई अपॉन x इज इक्वल टू 3/2. और यू कैन से बाई इक्वल टू 3/2 ऑफ x. अब वो कह रहा है कि ये सेम रहेगा. अब वो कह रहा है कि मेरा 1.3x पे मैं पहले बेच रहा था और इस पे बाई पे पहले बेच रहा था. अब वो कह रहा है कि मेरा 50% मोर कॉटन ट्राउजर. तो कॉटन विल बी 3 एंड दिस इज 2, बिकॉज 50% मोर इज नथिंग 3/2. तो ये हो जाएगा 3.9 ऑफ x प्लस ये हो जाएगा मेरा 3 ऑफ बाई. और हाउ मच इट इज अ परसेंटेज? टोटल मेरे पास कितना है? टोटल है मेरे पास में x प्लस, सो दिस इज हाउ मच? 3x प्लस 2/. 3x प्लस 2/. ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है. बाई की वैल्यू है मेरे पास 3/2 दिस ऑफ x. सो 2 बाई की वैल्यू है 3x. सो 2 बाई की वैल्यू मेरे पास 3x है, तो 3.9 ऑफ x प्लस 3 into 3/2 of x divided by this is 3x plus 3x. So its value will be overall 6x, and this value will be how much? 4.5. 4.5 and 3.9. 3.9 plus 4.5. X cut जाएगा. So how much is it? It is, this is 7 8, so this is 8.4 over 6. So how much it is more? It is more 2.4. So it is 2.4 divided by 6. So you can do this. 12 से मेरा 2 times, 12 से मेरा 5 times. So 2/4. 2/4 is nothing. Sorry, 2/5 is nothing. 40%. So answer my also 40%. But I did this question in this way. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सर अगर हम 100 CP मान लें और इसका 200 मान लें तो क्या होगा? नहीं, वी कैन नॉट अज्यूम. ठीक है, हम यहाँ पर नहीं अज्यूम कर सकते क्योंकि हमारा प्रॉफिट गिवन है. ठीक है. नाउ डू दिस क्वेश्चन.
ट्राई दिस क्वेश्चन रमसा. ये तो DI है. Yes, this is a kind of DI. Okay, I will discuss this question. Give me a minute. ध्यान से सुनेंगे. के मैंने कॉपी करा है एक्चुअली जेट से ही, तो मैंने देखा कि परसेंटेज वाला सेगमेंट था, तो आई जस्ट पुट इट परसेंटेज, या ऐसा कुछ दे रखा था, इसलिए मैंने फिर सोचा कि यार मैं लिख देता हूँ. ठीक है, कोई नहीं, हम इसको थोड़ी देर में भी कर सकते हैं. आई हैव नो इशू ना. हाँ, इस क्वेश्चन को करो जरा. स्पेंड योर 1 मिनट. ट्राई दिस. ओके, shall I discuss? ओके ओके. Okay, you are getting 100 to 400. Okay, let me try this. See how I will do this question. A manufacturer has 200-liter acid solution which contain 50% acid content. How many liter of acid solution with a 30% acid content may be added so that the acid contained in the resultant mixture will be more than 20% but less than 25. इसका मतलब है एक मेरा 15% वाला है, इसका है मेरा 200 लीटर, और एक मेरा है 30% वाला. इसका वो पूछ रहा है कितना मिलाएं, इसका कितना मिलाएं कि रिजल्टेंट मेरा 20% से ज़्यादा हो, और आई एम यूजिंग दिस वे, और 25% से कम हो. तो मैंने क्या कर लिया, एक बार 20% लेके इसका रेशियो निकाल लिया. रेशियो निकालूंगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. इसका मतलब है 2:1. तो आपने एलिगेशन पढ़ा होगा, अगर टू की वैल्यू अगर मेरे पास में 200 है, सो हाउ मच इट इज़ वन वैल्यू इज माई 100. इसका मतलब है 20 से कम नहीं होना चाहिए, 20 से ज़्यादा होना चाहिए. तो ये वाली वैल्यू फिर 100 से ज़्यादा होनी चाहिए. 100 से ज़्यादा की वैल्यू क्या है मेरे पास में, मोर देन 100. ये वाला और ये वाला दोनों में से कोई भी हो सकता है. अब अगर मैं इधर करूँगा तो ये मेरा 5 हो गया और ये 10 हो गया, है ना. तो ये हो जाएगा 1:2. अगेन ये अगर मेरा 200 है, अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी. इसका मतलब है मेरे पास जो रेंज आ रही है वो रेंज आ रही है 100 to 400. So my answer would be 100 to 400. Yes, C options. You did it correctly. ठीक है, गुड. नाउ दिस इज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये अच्छा वही वाले क्वेश्चन आगे दोबारा से. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, या hmm, या हाँ, वो वाले पुराने ही हैं. अभी आई एम जस्ट मूविंग अहेड. या स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, टेल मी आंसर.
Shall I discuss this? Okay, okay. Okay, your answer is 3%. Let me do this. M1 having 40%, M2 is having 30%. So definitely M3 is also having 30%. 3% of M1 product are defective. So 3% of this is okay, defective. 1% M2 defective, and there is 95% of the product are not defective. It means 5% product are defective. So better to deal with this percentage. Can I assume a number? Total stockpile number suppose 1000. M1 का कितना हो जाएगा मेरा 400, है ना? बिकॉज 40% ना 400, 30% 300, 30% 300, 3%, इसका 3% 12, इसका 1% 3, इसका 5% 15. So the total is what my 30. This is defective. So 30 divided by 1000 into 100. So you will get in value 3% defective. Yeah, good, good. Yeah, no problem. You can take it, I can say it 100 also. Why I did not take 100? Let's take this. It will come a 40, it is come as 30, it is come as 30. So now 40 का अगर मैं 3% निकालूंगा, so this will be a 1.2. This value will be 1%, that is 0.3. And this is how much it is 5%, that is 10% is my 3, that is 1.5. तो total मेरा आ जाएगा 3. So no problem, you can take it this way also, no issue. पॉइंट की वजह से मुझे लगा कि शायद आपको समझाने में दिक्कत होगी, दैट्स व्हाई आई टेक दिस वन, बट अदरवाइज इफ यू टेक दिस, दिस आल्सो अ गुड वे. ओके, गुड. नाउ डू दिस वन. डन. Okay, let's try. Let me try this. Gopal went to fruit market for a certain amount of money. With the money, he can buy either 50 oranges और 40 मैंगोज. या तो वो ये कर सकता है या वो ये कर सकता है. ही रिटेन 10% ऑफ द मनी फॉर द टैक्सी फेयर. इसका मतलब 10% का मतलब है 5 ऑरेंज के बराबर और 4 मैंगो के बराबर. आइदर दिस वन और दिस वन. इफ यू बाय 20 मैंगोज, उसने क्या करा, 20 मैंगोज क्या कर लिया, उसने बाय कर लिया. इसका मतलब है उसके पास कितना अमाउंट बचा, 50% अमाउंट बचा, है ना? क्योंकि 20 मैंगोज 40 मैंगोज में 100% खत्म हो जाता, 20% 50% अमाउंट बचा. और इस 50% में अगर वो ऑरेंज खरीदे तो कितने ऑरेंज ऑरेंज खरीदता, 25 ऑरेंज खरीदता. लेकिन 5 ऑरेंज के बराबर का अमाउंट उसने क्या कर लिया, अपने पास रिटेन रखा.
तो आंसर आ जाएगा मेरे पास में 20 ऑरेंज। तो वो सिर्फ कितने ऑरेंज खरीद पाएगा? 20 ऑरेंज खरीद पाएगा। या इट्स गुड। योर आंसर आई थिंक, या गुड Ramsa. I was expecting this one only. So this 20 is your answer. You might be doing in the different way. आपने सेम ऐसे करा है या आपने किसी और तरीके से करा है? This is a general waste question. You can attempt it in any of ways. No problem. Assume करके 100 rupees. Okay. So you might take in little calculation maybe. मेरे मुझे तो नहीं लगा. I took a just 50 orange खरीद लेगा या फिर 40 mangoes खरीद लेगा. He buy 20 mangoes. Now he left with a 50% of amount. इस 50% अमाउंट में वो क्या करेगा? 25 मैंगो ऑरेंज खरीदेगा, लेकिन उसको 10% रिटेन करके रखना है टैक्सी के लिए। तो इस अमाउंट का 10% चाहे इसका या इसका, एक ही बात है। इसका 10% मेरा कितना हो जाएगा? 5 ऑरेंजेस के बराबर है। और अगर मैंगोज के टर्म में 5 मैंगोज के बराबर है, तो इसका मतलब है 5 ऑरेंज का जो वैल्यू है वो रिटेन करके रखना चाहेगा। तो ये 25 ऑरेंजेस की जगह कितना ऑरेंजेस खरीदेगा? वो खरीदेगा आपका 20 ऑरेंज। क्यों मैंने बनाया? क्योंकि ऑरेंज मतलब 250 लग रहा था 25 ऑरेंज का। दिस इज व्हाट माय आंसर। नाउ दिस इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन। आई विल डू इट लेटर ऑन। दिस इज अ केसलेट टाइप। ठीक है, मैं ये दोनों क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। हाउ वी कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, आई विल टेल यू। बट बिफोर दैट, डू दिस क्वेश्चन। या दिस वन। हाँ, बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेक योर 1 मिनट। ओके, योर आंसर इज 24.2। okay, let me check this. The rate of increase in the price sugar observed to be 2% more than the inflation rate expressed in the percentage. The price of the sugar on 1st January 1994 is 20 rupees. The inflation rate for the year 1994 to 1995 were expected to 8% each. द एक्सपेक्टेड प्राइस फॉर द शुगर इज 1996। तो वो कितनी की बात कर रहा है? 1994 में ये अमाउंट है, वो कह रहा है भाई 1996 में कितना था। तो यहाँ पर 10% चेंज हो रहा है हर बार, बिकॉज 8% ये है और एक्चुअल में जो प्राइस चेंज हो रहा है वो 2% मोर देन द इन्फ्लेशन। सो हमारा 20 रुपीज है और इसको 10% से बढ़ा दो। अगर 20 को मैं अगर 10% से बढ़ा रहा हूँ, सक्सेसिवली बढ़ाएंगे, है ना? तो 20 into 11/10 into 11/10. So this is cancelled. So this will be a
5. So 121 divided by 5. So this will be a 24.2 rupees. So this is a successive na? Had you did in this way only? अच्छा, क्लास कितने बजे तक है आपकी? कितने बजे से है? 11। ओके, एक काम करते हैं, ठीक है। सो ये 1.5 आवर की क्लास हुई है आपकी, ठीक है। सो वन आप यू कैन से 30 मिनट क्लास आई विल टेक इट। अदर मैं हम कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। अभी 6 मिनट में मैं आपको छोड़ दूंगा, 11 o'clock मैं आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है। नाउ बिफोर दैट, या डू दिस क्वेश्चन फॉर मी क्विक। हाँ, मैं ये क्वेश्चन उसमें है, आपको जो मैंने बुक भेजी है ना, उसमें सारे क्वेश्चंस हैं फेस टू फेस वाली में। एक ये वाला क्वेश्चन और बता दो जल्दी से। Yes, so this will be 100% more. So sorry, thousands percent means this value. So 10 by 1 more means 11 by 1. Okay. So whatever the value I have 6, that will becomes 11 by 1 into 11 by 1. So 121 into 6. So this will be a 6. Chaduni Vara carry 1. This is 726. So this will be a 726. This is also the same case. Yeah. Mm, yes. See this one. You tell me na price. This is expenditure type. Revenue is nothing, price into sales. ये दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो आप कह रहे थे कि ये मेरा प्लस माइनस ए बी और ए बी बाय 100 वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कर लेना, ये इजी क्वेश्चन है। या एक क्वेश्चन ये और कर दो आप, उसके बाद हम टर्मिनेट कर देंगे दिस वन। 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। डन। 2.5। okay, let's try this. See, a fresh grapes contain 90% water while dry grapes contain 20% water. So 90% water means 1:9, total is my 10। वही ना, 90% वाटर मीन्स टोटल मेरा अगर 10 है तो 90% वाटर है, तो एक मेरे पास क्या हो जाएगा, ड्राई कंटेंट उसका। दिस इज फॉर माई फ्रेश। 20% वाटर, 20% वाटर मीन्स ये 1 है, क्योंकि दिस इज वाटर एंड दिस इज अ ड्राई, दिस इज 4 इज इक्वल टू 5 टोटल। 20% मीन्स होता है 1/5। सो दिस इज वॉट माई वाटर, दिस इज वॉट माई ड्राई पार्ट, ठीक है। नाउ एक बात बताओ, इसमें जो ड्राई पार्ट है वो दोनों में सेम होना चाहिए ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई मेरा क्या हो रहा है, केवल वाटर तो इवेपोरेट हो रहा है, ड्राई पार्ट तो इवेपोरेट होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सेम अ ड्राई पार्ट।
हम ना ड्राई पार्ट सेम कर देंगे। वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ड्राई ग्रेप्स ऑब्टेन्ड बाय द 20 kg ऑफ फ्रेश। अगर ये 20 kg है, मान लो ये 10 बराबर अगर 20 है, तो ये मेरा 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 kg हो जाएगा ड्राई, है ना। 2 kg ड्राई है। और अगर मुझे इसको 2 kg ड्राई बनाना है, सो व्हाट आई नीड टू मल्टीप्लाई, आई नीड टू मल्टीप्लाई हाफ। सो दिस इज हाफ, दिस इज 2, this is half, and this is a 2.5. Yes, your answer is correct, 2.5. You are absolutely correct in this way. अच्छा, आप हो सकता है आपने अलग तरीके से करा हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट आई डिड इन दिस वे, यू वांट टू बी, हो सकता है इससे आपने इजी करा हो, नो मैटर, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आई हैव जस्ट कलेक्टेड सर्टेन गुड क्वेश्चन ना, देखो सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकते हम एक ही क्लास में, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चंस है आप इन क्वेश्चंस को एक बार कर लेंगे, ठीक है। Can you do this question? This is a 2017 question. A manufacturer table sold also. Yes. बस ये वाला क्वेश्चन और कर दो, लेट तो नहीं हो रहे आप। बस this one only. The manufacturer of the table sells the wholesaler at a 10% profit. So this is the 10% profit. Wholesaler dealer sells the table and to retailer 30% profit. So this is a 13% profit into that finally the retailer sells to the customer 50% profit, that 50% profit. सो हो क्या रहा है, एक ही कमोडिटी को एक बार इसने सेल करा, एक बार इसने सेल करा, एक बार इसने सेल करा, तो मैंने तीनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो रिजल्टेंट विल बी how much it is paying. Customer pay this much of amount, then what is the manufacturing cost? So this is the customer cost, that is 4290, and this is the manufacturing cost only, ठीक है। आप इसको चेंज कर, 11 से कैंसिल कर दो, 11 का 3 टाइम्स 33, 33 से ये 9 टाइम्स, this is 10 times, so this m is nothing, 2000, so I think you got the value as a 2000 rupees, yeah, good, ठीक है। सो आई थिंक, मुझे नहीं लगता आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, यू विल पुट मोर स्टफ, क्योंकि अभी एग्जाम तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप डेली अगर 10-15 क्वेश्चन करोगे, यू माइट बी फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है। अब आप, मैं आपको ये अभी दे दूंगा सीट, आप ये वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, जो डाउट हो वो पूछ लेना। दिस क्वेश्चन इज नेसेसरी, आई जनरली थॉट कि ये जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। बाकी ये वाले क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे अरुण शर्मा में भी, ओके, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, आप एक बात बताओ, फिर मैं आपको 4 बजे आज क्लास रख रहा था, वो मैं रखूँ ना आपकी, कंफर्म है ना वो? ठीक है, ओके, ओके।